So, hello everyone, my name is Manish Kumar Jha and I will be discussing the chemistry lecture of your class 9th syllabus. In this lecture, we will start with the introduction to syllabus and the first chapter. Okay. Now, the first chapter of our syllabus is matter in our surrounding. A fairly small topic. It discusses about what is a matter, what are the various states of matter, and how you can convert one state into different one. Very basic lecture which we have already done in the various below lectures, below standards also. Then we will discuss what are the different matters around us and are they pure or are they impure? What are the matters which are pure and what are the matters which are impure, and how we can change an impure matter into the pure one. Impure को pure कैसे बना सकते हैं? We'll also discuss that in the second lecture. In the third lecture, we'll start with the atoms and the molecules, and this is the basic lecture which is going to form the foundation of your further studies. Atoms and molecules, and इसमें जो भी हम लोग एलिमेंट के नाम, कंपाउंड लिखना, वैलेंसी वगैरह सीखेंगे, ये बेसिक फॉर्म करेगा आपके केमिस्ट्री का, and this will be widely used in your further standards like class 9, 10th, 11th, 12th also. In the last chapter will be structure of atom, how atom originated, what are the various theories regarding atom. Those will be discussed in the fourth chapter. These are the fourth chapter of our syllabus. Let's begin with the first chapter, matter in our surrounding. Now, first of all, what is a matter? Matter किसको कहते हैं? So matter is defined as anything जो भी आपको दिखे which occupies space, जो कि space occupy करे, जिसको जगह चाहिए, has mass. स्पेस ऑक्युपाई करने को ही वॉल्यूम कहते हैं. स्पेस ऑक्युपाई करने को मतलब क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. जितना कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं. हैज मास, उसका कुछ मास है. केमिस्ट्री में मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन मास और वेट सेम होता नहीं है. लेकिन केमिस्ट्री के बुक में या केमिस्ट्री के फैकल्टी अगर कभी मास और वेट बोल दें तो आपको उनको सेम ही समझना है. लेकिन फिजिक्स में मास और वेट सेम नहीं होता है. मास का मतलब मास होता है और वेट का मतलब mg, जो फोर्स किसी बॉडी पर लगता है उसको बोलते हैं वेट. सो अलग होता है, लेकिन इन जनरल केमिस्ट्री में मास और वेट सेम बोल दिया जाता है. सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हैज मास. ऑक्युपाइज स्पेस का मतलब वॉल्यूम होगा, उसका कुछ मास होगा, और प्रोड्यूसेस सेंसेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई विल से लाइट मैटर है क्या? तो आप कहेंगे सर लाइट का स्पेस के बारे में तो पता नहीं, स्पेस ऑक्युपाई करता है कि नहीं करता है, मास, बट इट प्रोड्यूसेस यू सेंसेशन ना. बिकॉज ऑफ लाइट यू कैन सी दीज थिंग्स. अगर लाइट में ऑफ कर दूं, पूरा अंधेरा हो जाए, तो आप ये नहीं देख पाएंगे. साउंड, मैं बोल रहा हूं आपके कानों तक पहुंच रहा है, साउंड, इट इज अ मैटर बिकॉज इट प्रोवाइड्स सेंसेशन. सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, इसका कुछ स्पेस हो, मास हो, एंड हैज वॉल्यूम. तो थिंक अबाउट एयर. एयर क्या है? Air is also a matter. How? Think about it. एक बलून लीजिए और उस बलून में भी एयर मत भरिए. बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा बलून लीजिए और उसमें एयर भर दीजिए. Now, एक बीम बैलेंस लीजिए, तराजू जिसको बोलते हैं. एक पैन पर वो इन्फ्लेटेड बलून रखिए जिसमें हवा भर दिया गया था, और दूसरे पे रखिए जो इसमें हवा नहीं भरा था. You will see, जिसमें हवा भरा हुआ बलून था वो वाला पैन थोड़ा नीचे झुक जाएगा क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ एयर. सो एयर ऑल्सो ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास. सो एयर इज अ मैटर. Similarly, this marker is a matter, this watch is a matter, I am also a matter, this blackboard is a matter, and there are various matters around us. Matters can be solid, liquid, and gases. In general, we talk about 3 states of matter. However, if someone will ask you how many states a matter have, then you will answer 5. There are 5 states of matter: solid, liquid, gas. The 4th state is called plasma state, and the 5th state is called Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Now, we will discuss the 3 states in detail, and I will briefly discuss what are the 4th and 5th state in the later part of this lecture. Right? So, before starting, we have to know about a theory called kinetic theory of matter. Matter के बारे में कुछ theory है. क्या theory है? कि जो भी matter होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जो मेडअप होता है किससे बना होता है?
स्मॉल टाइनी पार्टिकल से, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, ये मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। बिकॉज ऑफ मोशन देयर इज एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस एनर्जी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स और जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। दिस रैंडमनेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं इसलिए रैंडमनेस कम होता है। लिक्विड्स में थोड़ा रैंडमनेस ज्यादा होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। these matters molecule attract each other। जो मैटर के मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड दे हैव सम स्पेस इन बिटवीन देम। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, एंड जो उनके बीच का स्पेस होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। एंड कीप इन माइंड, अगर स्पेस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है। दैट मींस क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक हैं इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा होगा, वेयर एज इन केस ऑफ गैसेस क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है इसलिए फोर्स क्या होगा? बहुत कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है इन केस ऑफ गैसेस। सो इसको एक बार लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर हम लोग अगली स्लाइड में बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो अलग होते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। इन जनरल हम लोग तीन लेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में तो बहुत दूर दूर तक रहते हैं, बहुत लूजली पैक्ड, हाईली लूज। इसी कारण से क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है इसलिए ये बहुत रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, उस मॉलिक्यूल को आप दूर नहीं कर सकते। लिक्विड्स आर लेस रिजिड व्हेयरएज गैसेस आर लो रिजिड, बहुत कम, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। कंप्रेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस करने का टेंडेंसी। ये मार्कर है, क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइटली पैक्ड है इसलिए इसका कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड्स बहुत बहुत कम, थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप क्या करो, बलून में एयर भर दो और बलून को कंप्रेस करने की कोशिश करो, कर सकते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत, जब तक वो टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, तब तक तो कर सकते हैं। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, उसको डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है इसलिए इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा ना, टाइटली पैक्ड है तो, और मास भी ज्यादा होगा। लिक्विड में क्योंकि लूजली पैक्ड है इसलिए डेंसिटी कम होता है, लेस होता है, और गैसेस का डेंसिटी तो वेरी लो होता है, बहुत लो डेंसिटी होता है गैसेस का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने कहा था अगर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि स्पेस इसमें बहुत कम है इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसमें मॉडरेट होता है, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है इसलिए फोर्स बहुत कम होता है। ठीक, आ जाए शेप। शेप का मतलब जिस तरह से वो बना हुआ है, तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स्ड। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। पानी को जिस बर्तन में डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे, उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा, तो लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। गैसेस का भी नहीं होता। इस रूम में गैस छोड़ दीजिए तो पूरे रूम को ऑक्युपाई कर लेगा, पूरे रूम के बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम। दैट्स व्हाई दे ऑक्युपाई इंटायर कंटेनर। एक उस कोने में रहेगा, दूसरा उस कोने में, तीसरा उस कोने में। तो गैस को जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का वॉल्यूम ले लेगा। तो गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम। तो गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। भाई 1 लीटर पानी, तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। जबकि सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है, द
देन वी हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो। ये मार्कर को यहां रख देंगे टेबल पे, तो क्या ये फ्लो करेगा? नहीं करेगा। सॉलिड का फ्लो करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, लिक्विड का फ्लो करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। अगर पानी रख देंगे तो वो फ्लो करेगा। सो लिक्विड्स हैव हाई टेंडेंसी टू फ्लो। व्हाट अबाउट गैसेस? देयर टेंडेंसी टू फ्लो इज वेरी हाई। गैस को यहां छोड़ देंगे आप, गर्म खाना जब बनते रहता है तो दूसरे रूम से भी स्मेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्लो करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैस के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। अगर आप कोई दूर में सेंट लगाया हुआ हो तो यहां तक आपको सेंट आता है, अगरबत्ती का स्मेल दूर से यहां तक आता है, गर्म खाने का स्मेल दूर से यहां तक आता है। क्यों? क्योंकि वो जो गैस है वो मिक्स हो सकता है, डिफ्यूज होकर यहां तक पहुंचता है। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठंडे खाने का क्यों नहीं आता है? क्योंकि गर्म खाने से गैसेस निकलते हैं, ठीक है, ठंडे खाने से गैस नहीं निकलता, इसलिए ठंडे खाने का स्मेल नहीं आता, गर्म खाने का आता है, ठीक है। तो गैस का प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन होता है, बहुत हाई होता है, इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी है। यही कारण है कि रूम के एक कोने में अगर अगरबत्ती जला दें तो हम लोग दूर से स्मेल कर सकते हैं उसको। ये जो तीनों स्टेट हैं ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के घटाने से गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर का केस उल्टा चलता है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो गैस जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। प्रेशर के बढ़ाने से, प्रेशराइज करने से गैस किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। तो देखिए यहां पे टेम्परेचर तो घट रहा था लेकिन प्रेशर का बढ़ना होता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर अपोजिट चलता है। यहां पे अगर प्रेशर घटाएंगे तो लिक्विड पे चला जाएगा, प्रेशर और घटाएंगे तो गैस पे चला जाएगा। तो प्रेशर के घटाने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, और प्रेशर के बढ़ाने से गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। टेम्परेचर में उल्टा, टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, टेम्परेचर के घटाने से गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। डिफरेंट स्टेट्स के बीच ये प्रोसेस का नाम होता है। ये तो बहुत बेसिक चीज है। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो मेल्ट करके क्या बनता है? लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने का बहुत सारा यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दें, 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में बदल जाता है। तो डिग्री सेल्सियस को में अगर 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। तो 273 केल्विन आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या कर दीजिए? 273 माइनस कर दीजिए। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। डिग्री सेल्सियस से केल्विन आने के लिए 273 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 0 में 273 ऐड कर दिए तो केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए 273 ऐड करना है, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 273 माइनस करना है। सिमिलरली अगर लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो उसको फ्रीजिंग कहेंगे। जिस टेम्परेचर पे होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होता है। लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसेस का नाम बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दीजिए तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि केल्विन ही ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? केल्विन, ठीक है। सिमिलरली गैस से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। एक होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड में गए, या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना। इन दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस in which a solid gets converted into gas directly without going to liquid state. See, मैं डेफिनेशन कई बार बोल दे रहा हूं, लिखा नहीं हूं, तो आपको ये मेरे बोलने के साथ साथ लिखते भी चलना है, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि नोट कीजिए तो आप एक बार वीडियो को देख करके जो डेफिनेशन है उसको लिखना भी है। So what is sublimation? Conversion of solid into gas on heating or vice versa directly without going to liquid state. And the example of such substances are
सॉरी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। कैम्फर, कैम्फर आप देखे होंगे। कपूर, कपूर क्या होता है, डायरेक्ट उसको जलाइए तो सीधा सीधा गैस बन जाएगा। कपूर क्या है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना, तो आयोडीन क्या है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म जो होता है जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये भी एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। एक और याद रखना है, नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल, फेनाइनी गोतिक भी कहते हैं। अगर आप देखे होंगे वो अलमीरा वगैरह में रखते हैं ताकि कपड़ा का स्मेल अच्छा रहे, कोई कीड़ा वगैरह ना रहे, तो नेप्थलीन बॉल्स रखते हैं। तो नेप्थलीन बॉल भी क्या है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। सो आई होप ये वेरियस कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। और एक पॉइंट और बच गया, उसको हम लोग पढ़ के ये लेक्चर खत्म कर देंगे। पहला लेक्चर बहुत छोटा सा है, तो आप पहले लेक्चर को एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, और फिर एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज उसको बनाना है, अगले क्लास में उसका डिस्कशन होगा, इसको नोट कीजिए। सो दो तीन छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लें। सबसे पहला कि कई बार वर्ड मिलेगा वेपर, कई बार मिलेगा गैस, तो उनमें फर्क है। वेपर इन जनरल गैसियस स्टेट ऑफ वाटर को कहते हैं, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का जो गैसियस स्टेट होता है उसको वेपर कहते हैं। और बाकी किसी भी, फॉर एनी अदर सब्सटेंस हम लोग गैस वर्ड यूज करते हैं। तो वेपर और गैस में समझ गए, वाटर का जो गैसियस स्टेट होता है उसको वेपर कहते हैं, और बाकी अगर मिल्क का हुआ या किसी भी और का तो उसको गैस कहते हैं, ये फर्क है। एक और टर्म होता है, एक होता है इवापोरेशन, एक होता है बॉइलिंग। इन बोथ द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, दोनों में लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है। सिमिलरिटी है ये कि इवापोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग में भी होता है। इन इवापोरेशन वाटर में होता है, तो इसलिए बोलते हैं वाटर दैट इज लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर, दोनों केस में होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस। पहला डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग जो है एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बीपी। लेकिन इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आप देखे होंगे कि ठंड के दिनों में भी लेक के पास, नदी के पास जाएं तो वहां से भाप निकलते रहता है, इवापोरेशन। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। सो इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, whereas boiling take place at fixed temperature. Evaporation is a surface phenomenon. Now what is the meaning of surface phenomenon? ये जो वाटर है मान लीजिए किसी लेक में, तो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकले और गैस में कन्वर्ट हो गए। और जब इवापोरेशन के मॉलिक्यूल अपने एनर्जी को लेके चले जाते हैं, इस कारण से इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, क्योंकि सरफेस का मॉलिक्यूल अपने आप को लेके चला गया, इसलिए क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फेनोमेनन है। बल्क का मतलब थ्रू आउट वॉल्यूम। देखिए मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें पानी रख के इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो लोअर मॉलिक्यूल होगा उसको जैसे ही हीट मिलेगा वो गर्म होगा। गर्म चीज हल्का होता है, लाइट होता है, ये चीज लाइट होगा, ऊपर राइज करेगा, और इसका स्पेस लेने ऊपर से हैवियर, जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो हैवियर होगा, वो नीचे आ जाएगा। इसको बल्क फेनोमेनन कहते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स, चाहे वो नीचे हो चाहे सरफेस को, सारे मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होंगे। और ये जो लाइटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है और हेवियर मॉलिक्यूल नीचे आता है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, या कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। इसी के वजह से बहुत सारा फेनोमेनन होता है, जैसे कि हम लोग एसी को कहां रखते हैं, इन जनरल टॉप पर। क्यों रखते हैं, क्योंकि एसी से ठंडा हवा निकलता है, ठंडा हवा भारी होता है तो वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा। जबकि रूम हीटर कहां रखते हैं, बॉटम पे। क्यों, क्योंकि रूम हीटर से गर्म हवा निकलेगा, तो गर्म हवा हल्का होता है, अपने आप ऊपर राइज करेगा। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का नाम सुने होंगे। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज क्या होता है, बालू और पानी में, बालू बहुत जल्दी गर्म होता है लेकिन पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। तो इन जनरल सुबह के समय क्या होता है, जैसे सुबह सूरज उगता है तो बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, तो बालू, सैंड के ऊपर का एयर जो होता है वो ऊपर राइज कर जाता है। सैंड के ऊपर का एयर, क्योंकि सैंड गर्म हो गया इसलिए उसके ऊपर का एयर क्या होता है, ऊपर राइज कर जाता है, तो यहां पे स्पेस खाली हो गया। लैंड अभी भी गर्म नहीं हुआ है, मतलब ठंडा ही है, उसके ऊपर का एयर भी ठंडा होता है, ठीक।
तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, हवा रहा नहीं, स्पेस क्रिएट हो गया। तो ठंडा हवा सी से मतलब पानी से इधर की तरफ चलता है। वाटर अभी गर्म नहीं हुआ था, उसके ऊपर का एयर भी गर्म नहीं हुआ था, तो सी के तरफ से हवा चलता है किधर की तरफ, लैंड की तरफ। इसको सी ब्रीज कहते हैं। ये हवा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, क्योंकि वहां से ठंडा हवा चलता है, इसको सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली शाम के समय, दिन भर में तो गर्म हो जाता है, तो लैंड गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो गया, तो दोपहर में कोई हवा नहीं चलता। लेकिन शाम के समय क्या होता है, शाम के समय बालू बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है। बालू बहुत जल्दी ठंडा हो गया तो उसके ऊपर का एयर भी ठंडा हो गया, लेकिन पानी तो ठंडा हुआ नहीं है। पानी के ऊपर का एयर भी गर्म होता है, वो ऊपर राइज किया हुआ होता है। तो इस बार ये हवा ठंडा हवा, क्योंकि लैंड ठंडा है ना, तो ठंडा हवा लैंड से चलता है, इसलिए इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। तो लैंड ब्रीज इवनिंग में होता है, सी ब्रीज सुबह सुबह होता है। तो वो भी कन्वेक्शन की वजह से ही होता है, और बॉइलिंग के कारण कूलिंग नहीं होता है। सो आई होप ये इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच आपको फर्क समझ में आ गया होगा। इवापोरेशन जो है बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। इवापोरेशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो कपड़ा होता है, जब उसको आप साफ करते धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो कपड़ा बहुत बुरा निचोड़ करके बहुत छोटा हो जाता है। उसी फॉर्म में कपड़े को हम लोग क्या सुखाने के लिए डाल देते हैं? नहीं, क्योंकि उस फॉर्म में उसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा। तो क्या कहते हैं, हम लोग पूरा फैला करके डालते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आसानी से इवापोरेशन होगा और उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से बाहर जाएंगे, सूख जाएगा जल्दी। तो इसलिए इवापोरेशन इंक्रीज विद सरफेस एरिया। सिमिलरली अगर विंड स्पीड ज्यादा होता है तो इवापोरेशन ज्यादा होता है। सेम केस, अगर कपड़ा सुखाना है और ठंडा हवा चल रहा है तो जल्दी वो मॉलिक्यूल को लेके चला जाएगा, इवापोरेशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर हवा नहीं चल रहा है तो इवापोरेशन नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी। इसको समझिएगा। ह्यूमिडिटी होता है कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर। अब सोचिए, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, ज्यादा ह्यूमिड डे है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो एयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल है। अब सोचिए, कोई कपड़ा हम सुखाने के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ का वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी वाटर है ना। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी अगर कम है, मतलब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो इवापोरेशन कम होता है, राइट। सो इवापोरेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम होगा तब इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन का बहुत सारा एग्जांपल है। एक तो कपड़ा सुखाने वाला होता है, दूसरा कि गर्मी के दिनों में हम लोग लाइट कलर का शर्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कलर का शर्ट जो होता है वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कम गर्मी लगता है। लेकिन ब्लैक कलर का शर्ट जो है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ज्यादा गर्मी लगता है, जिस वजह से हम लोग को स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है। स्वेटिंग जो होता है ये भी इवापोरेशन है। स्वेटिंग हुआ, उसकी वजह से वो जो स्वेट है वो इवापोरेट कर जाता है। तो स्वेटिंग के थोड़ा देर बाद थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि इवापोरेशन हो गया। तो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है। सिमिलरली आप अर्थन पॉट, जिसको मटका कहते हैं, जिसमें पानी रखा जाता है गर्मी के दिनों में, तो वो ठंडा हो जाता है। कैसे? क्योंकि मटके में जब पानी रखते हैं तो मटके में पोर्स होता है। पोर्स बहुत टाइनी पोर होता है, बहुत छोटा पोर होता है। मिट्टी का बना होता है ना, इसलिए बहुत छोटा सा टाइनी पोर होता है, उससे पानी नहीं निकल सकता। लेकिन क्योंकि उस मटके को आप धूप में रख दिए या बाहर में रखे हुए हैं, सो बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ आउटसाइड एनवायरनमेंट, वो जो एनर्जी की वजह से वो जो पानी होता है वो इवोपोरेट कर जाता है, सरफेस का वाटर। वो सरफेस का वाटर उन पोर्स के थ्रू बाहर निकल गया, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं तो वो अपने एनर्जी को लेकर चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट कॉजेस कूलिंग। इसलिए वो पानी ठंडा हो जाता है। सिमिलरली अगर नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पे आप डालिए, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, तो आपका हाथ ठंडा ठंडा फील होता है। सेम रीजन, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो नेल पॉलिश रिमूवर वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब जो बहुत जल्दी इवोपोरेट हो जाए। तो उसको जैसे ही डाले तो आपके हाथ के ऊपर का जितना मॉलिक्यूल था, जो गर्मी था, सब उसको लेकर के वो इवोपोरेट हो गया, और इवोपोरेशन के बाद क्या कॉज कर दिया? कूलिंग, है ना। तो ये इवोपोरेशन के कुछ एग्जांपल है। मैंने आपसे कहा कि 3 स्टेट नहीं 5 स्टेट होता है। हम लोग इन जनरल 3 ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट साइंटिस्ट लोग इस पे स्टडी कर रहे हैं कि देयर आर 2 more states. The 4th state is called plasma state. 4th स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट,
विच आर आयोनाइज्ड गैसेस। जैसे सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किए तो गैस बना। अगर गैस को बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाए तो वो प्लाज्मा बन जाता है। इस पे भी शोध चल रहा है और कहा जाता है कि जो ट्यूब है, आप मरकरी देखे होंगे, जो ट्यूबलाइट हम लोग यूज करते हैं, पहले वाला ट्यूबलाइट, उसमें जो गैसेस होते थे आयोनाइज्ड गैसेस, वो प्लाज्मा होते थे। अभी वाला एलईडी ट्यूब नहीं, पहले वाला जो ट्यूबलाइट होता था उसमें प्लाज्मा स्टेट में गैस होता था, तो आयोनाइज्ड आयन। और एक बहुत रिसेंट, मतलब पिछले कुछ ही साल पहले, 100 साल पहले के आसपास, आइंस्टाइन और बोस ने डिस्कवर किया। 100 साल को फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत कम कहते हैं क्योंकि बहुत पुराना था ये सब चीज। तो रिसेंटली स्टडी चल रहा है जिसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, जिसको 5th स्टेट के बारे में स्टडी किया जा रहा है। तो अभी बस आप याद रखिए कि 4th स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा, जिसमें आयोनाइज्ड गैस होता है, और 5th स्टेट को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी चर्चा ही नहीं हुआ है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा हम लोग को भी नहीं पता है, इसलिए बस आपको इतना याद रखना है, राइट। सो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये याद रखना है। सो दिस समराइजेस एंड कंप्लीट्स comprehensively everything related in the first chapter. First chapter is a very easy chapter, बहुत बेसिक चीज है, and I hope everything was clear to it. Please note it down, इसको नोट कीजिए, and then please solve every in text as well as exercise question. And in the next video, I will be discussing some of the important questions from that, and we'll start with the next chapter. So thank you for being with us. Have a great day, and this concludes our lecture. Thank you.